एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਓਪਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਚਲਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ MCQ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ YouTube, Facebook, Instagram, Telegram ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਟੂਡੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ। ਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 8 ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 8 ਟੌਪਿਕ ਤੇ 9ਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟੈਟਿਕਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2D ਕਰਾਂਗੇ, 3D ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਲਿਮਿਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਟੂਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਟਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ
ओरिजिनली सब तो पहला जो डाटा कलैक्ट किया जाता उसमें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਕਲੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ हाँ जी, पहली बार जी आप कलैक्शन की है जी वो आएगी प्राइमरी डाटा जो दूजे बंदे तो आप कोई कलैक्शन किया है पहला तो ऑब्जर्व किया है डाटा झेल रहे हैं तो क्या आ गया जी सैकेंडरी डाटा के अंदर आ गया। डाटा के बाद जी अपने को क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन की होंगी जी वर्गीकरण। आप पंजाबी च कह दें कि किसी भी चीज़ को किस तरह आप क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह उसमें जो आप अरेंज कर सकते हैं, फिर आप वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये भी अपने को दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक होंगी जी सिंपल क्लासिफिकेशन तो दूसरी होंगी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस। हाँ जी, सिंपल ਤੇ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਤੇ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਆ ਹੋਗੀ ਸਿੰਪਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੇ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर की कहते हैं तो दो तो वध आप कोई भी आप एट्रीब्यूट्स इकट्ठे ले लेने तो वो अपने को कह देंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पॉपुलेशन के अंदर मेल ते फीमेल के अंदर कितनी मेल ते फीमेल के अंदर अलग अलग लिटरेसी रेट चेक करना है। तो दो कंट्रीब्यूट आ गए, एक तो अपने को जेंडर आ गया, एक लिटरेसी रेट आ गया। ठीक है, हुण जेंडर ते लिटरेसी रेट दो चीज़ां आ गई तो वो की बन गई जी अपने को मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बन गई। एक क्या सिर्फ तुसी लिटरेसी रेट चेक करना है, लिटरेट ते इलिटरेट अलग करने इहदे अंदर इक्को एट्रीब्यूट सी तो आ की सी सिंपल क्लासिफिकेशन सी। इहदे अंदर जेंडर ते लिटरेसी दो चीज़ां आ गई तो आ की होगी जी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होगी। तो इस तरह क्लासिफिकेशन में अपने को दो तरह की हुंदी है। हाँ जी, थर्ड चीज अपने को आती है, थर्ड अपने को आता है जी टेबुलेशन। आ तो मैं तुम्हें दस देनी है कि अपने को टेबुलेशन जी ये भी अपने को होंगी जी दो तीन तरह की होंगी। एक होंगी सिंपल टेबल जिवें कि आप गल करते हैं, जो होंगी डबल टेबुलेशन जिस अपने को डबल डाटा, तीजी होंगी जी मैनीफोल्ड। ठीक है, आज जिवें टेबल बनाओगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तीन तरह की अपने को टेबुलेशन होंगी है, मैनीफोल्ड, सिंपल ते डबल। उस तो बाद अपने को आता है जी फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल अपने को दो तरह के होंगे ने। पहला फ्रीक्वेंसी टेबल केड़े केड़े होंगे, एक तो होंगे जी अपने को सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल होंगे, दूसरा फ्रीक्वेंसी टेबल होंगे जी अपने को क्यूमुलेटिव। ठीक है जी, दो तरह के फ्रीक्वेंसी टेबल होंगे ने, क्यूमुलेटिव ते क्यूमुलेटिव, सॉरी दो तरह के होंगे। एक सिंपल होंगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव होंगे। आप जी मेन सिंपल के बारे पढ़ांगे, अपन क्यूमुलेटिव के बारे अपने सिलेबस के अंदर कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले आप सिंपल बारे पढ़ांगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल अगे अपने को दो तरह का होंगे जी। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर एक तो अपने को डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है तो दूसरी आ जाती है कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, सिंपल के अंदर आगे दो तरह के आ जाते हैं, डिस्क्रीट ते कंटीन्यूअस। इन्होंने बारे जिवें जिवें आप अगे चलांगे तो डिस्क्रीट भी दसांगे, कंटीन्यूअस केड़ी है, क्यूमुलेटिव केड़ी है, हर एक चीज़ बारे आप अगे एक्सप्लेन करांगे। एक बार सिर्फ तुहानूं टर्म्स तो जानू करवा रही हां कि फ्रीक्वेंसी टेबल दो तरह के होंगे, सिंपल ते क्यूमुलेटिव। ते सिंपल दो तरह के होंगे, डिस्क्रीट ते कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट के अंदर की होंदा अपने को एफएक्स वाले होंगे, कंटीन्यूअस के अंदर अपने को पहले 0 to 10, 10 to 20 अपने को कंटीन्यूअस वाले होंगे ने। ठीक है जी, तो ये अपने को दो तरह के फ्रीक्वेंसी टेबल होंगे, किहड़े सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इस तो बाद अपने को आते हैं डायग्राम कि आप डायग्राम के अंदर इसको किवें रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने को किस तरह होंगी जी, अपने को गल करिए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जी है जी अपने को डाटे की किस तरह होंगी है, किन्ने तरीके नाल आप डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर जो आप गल करिए
सॉरी। तो डायग्राम के अंदर अपने को पहला आते जी वन डायमेंशनल डायग्राम की गल करिए। वन डायमेंशनल डायग्राम के अंदर अपने को केड़े डायग्राम आते हैं? बार ग्राफ आंदा है जिन्होंने आप कहते सी छड़ ग्राफ, है ना। बार ग्राफ होंगे जी, सब डिवाइडेड बार ग्राफ होंगे ते मल्टीपल बार ग्राफ होंगे। बार ग्राफ ही आंदा है अंदर अपने को मल्टीपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ सॉरी सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है जी, ये अपने को वन डायमेंशनल अंदर है। दूसरा अपने को टू डायमेंशनल भी होंदा है, 2D मैं सीधा 2D लिख देनी है। 2D दे अपने को केड़े आंदे ने? स्क्वायर ते सर्कल्स वाले आंदे ने। स्क्वायर दे अंदर आप डाटे नु करदे हैं रिप्रेजेंट, आप सर्कल दे अंदर करते हैं। तीजा अपने को आंदा है जी 3D। तीन तरह के अपने को डायग्राम होंगे ने। 3D दे अपने को केड़ा आंदे जी? 3D दे अंदर अपने को सिलेंडर्स, पाई डायग्राम्स, ये सब कुछ अपने को 3D दे अंदर आ जाते हैं। ओ सॉरी, हाँ जी, सिलेंडर, पाई डायग्राम मेरे मुंह तो गलती नाल लिखिया। 3D दे अंदर अपने को केड़े आंदे ने? 3D दे अपने को आंदे ने क्यूब ते सिलेंडर। ये दो तरह के होंगे ने। जे जरूरत हो तो मैं इन्होंने एक्सप्लेन करके बना देंगे। चौथी तरह के अपने को पाई चार्ट आप बनाते हैं। चौथी तरह की रिप्रेजेंट हम तुम पाई चार्ट सर्कल सेम, पाई डायग्राम ते सर्कल ਨੂੰ सेम ना ले लियो। पाई डायग्राम ते सर्कल ਨੂੰ सेम ना मन लियो, अलग अलग होंगे ने। चौथा अपने को पाई डायग्राम आ जाता है जी। पंजवीं टाइप अपने को आ जाती है जी पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स देखा होगा तुसी पिक्टोग्राम। ते 6 टाइप अपने को आ जाती है जी कार्टोग्राम्स। तो ये अपने को जी कार्टोग्राम्स, तो ये अपने को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जी। कोई भी डाटे आप इन्नी तरीके नाल रिप्रेजेंट कर सकते। हाँ, डायग्राम के अंदर हम ध्यान रखियो, मैं डायग्राम लिया, ग्राफ नहीं लिया, ध्यान रखियो ग्राफ नहीं है। ठीक है, इतने बार डायग्राम लिखना सी बाय मिस्टेक मैं लिखता। ये डायग्राम की गल हो रही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने को 6 तरह की है, 1D 2D 3D पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम ते कार्टोग्राम। इसी तरह अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गल करिए जी। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की गल करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपने को की कुछ आता है? लेट अस सी। हाँ जी, ग्राफ के अंदर अपने को की कुछ आ जाता है? केड़े केड़े ग्राफ होंगे ने जी? हाँ जी, हिस्टोग्राम पढ़े, हिस्टोग्राम आ जाता है। दूसरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड आ जाता है जी अपने को फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फोर्थ अपने को आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर उसको अपन ओजाइव भी कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? ओजाइव भी कहते हैं। ठीक है जी, या फिर उसका नाम क्या है? ओजाइव। तो ये अपने को जी 4 तरह के ग्राफ आ जाते हैं जिन्होंने बारे आप डिस्कस करेंगे। अपने को ग्राफ कितने आ जाते हैं? 4 तरह के अपने को ग्राफ हो जाते हैं। ठीक है जी, हुण आप अगे अपने टॉपिक ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक ते आंदे हैं ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ। तो सब तो पहला तो दसना कि सेंट्रल टेंडेंसी होंदा क्या है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डेफिनेशन लिखी देनी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सॉरी, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए वैल्यू अराउंड, एक वैल्यू होंदी है जिस दे अराउंड पूरा अपने कोल विच द ऑब्जर्वेशन टेंड to cluster and which typifies, या फिर अगर simplifies, which typifies their magnitude। कहने का मतलब की है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप गल करिए कि that single value which may be taken as the most suitable representation of the data,
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ मतलब आके मेजर है कि दैट सिंगल वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू, दैट सिंगल वैल्यू which may taken as the most suitable representation of data, कि सब तो बेस्ट होवे जेडी सब तो बेस्ट डाटा नु रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी, ओ वाली वैल्यू जेडी बेस्ट जेडी सब डाटा नु सब तो बेस्ट तरीके नाल रिप्रेजेंट करदी है, उस के सेंट्रल टेंडेंसी दी वैल्यू हुंदी है, वो की हुंदी है उसदी सेंट्रल टेंडेंसी हुंदी है। तो आ सेंट्रल टेंडेंसी दी डेफिनेशन पता लगी कि एक नंबर एक वैल्यू दे अंदर आपा जे पूरे डाटा नु रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ओके इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अपने को मेजर ऑफ में आपा गल करिए मेन मेजर केड़े ने अपने को सेंट्रल टेंडेंसी दे, तो सेंट्रल टेंडेंसी दे अपने को मेजर्स आंदे ने मीन। ठीक है, मीन के अंदर अपने को क्या आंदा है, अर्थमेटिक मीन आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है ते हार्मोनिक मीन आ जाता है। ठीक है जी, आ तो अपने को मीन आ गए। दूसरा अपने को आंदा जी आप मीडियन। तीजा इसके अंदर आप पढ़ांगे जी मोड बारे। ठीक है, हाँ जी, तो ये अपने को सारे मतलब जिन्नी भी अपने को गल करिए अपने को सेंट्रल टेंडेंसी दे मेजर ने मीन मीन दे अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन ते मोड। ये जेडे जी अपने को पांच तरीकों दे सेंट्रल टेंडेंसी ने पांच तरीके दे इन्हां चीज़ां बारे पढ़ांगे। इस तो इलावा अपन अंदर डिस्पर्शन बारे भी पढ़ांगे, वेरिएंस बारे भी पढ़ांगे, पर मेन अपने को जे आप गल करिए सेंट्रल टेंडेंसी अंदर तो अपने को पांच जेडे जी हैगे ने मेजर्स जिन्हां बारे आप पढ़ना है केड़े-केड़े है जी, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन तीन तरह दा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ते हार्मोनिक मीन। आज आप जिस बारे डिस्कस करेंगे जी वो है जी अपने को अर्थमेटिक मीन। आज दे दिन आप अर्थमेटिक मीन बारे डिस्कस करेंगे आज दे लेक्चर के अंदर। हाँ जी, अर्थमेटिक मीन। लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो मैं पहला मैं समझाया हुआ है कि की हुंदा एवरेज भी कहने आप इसमें। अर्थमेटिक मीन नु आप की है जी एवरेज भी कहने हाँ, तो अर्थमेटिक मीन अपने को की हुंदा है एवरेज। हाँ जी, तो हम आप गल करिए अपने को अर्थमेटिक मीन पढ़ने तो पहला आप पहला सीरीज देख लेने अपने को केड़ी-केड़ी सीरीज हुंदियां ने। अपने को तीन तरह दी सीरीज हुंदियां ने, एक हुंदी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल नाम तो पता चल रही केड़ी होगी सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर सिंगल डाटा देता हुआ इको लाइन के अंदर जिवें कि मैं देता 3 5 7 9 11 12 17 आ मेरे को क्या जी इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरी सीरीज केड़ी हुंदी है, दूसरी हुंदी है अपने को डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुंदी है ते आउटकम्स दिते हुंदे। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फॉर एग्जांपल अपने को एक्सरसाइज दिते हुंदे ते F5 फ्रीक्वेंसीज दी हुंदियां ने। फॉर एग्जांपल कि अपने को 4 नंबर वाले कितने बच्चे ने, 5 नंबर वाले कितने बच्चे ने, 6 नंबर वाले कितने ने, 7 वाले कितने ने, 8 वाले कितने ने। जिवें कि इत्थे नंबर दिता 3 1 2 4 5 इस तरह। तो आपने को केड़ी सीरीज आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, दैट इज ए डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है जी, आपने को केड़ी आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी सीरीज अपने को केड़ी हुंदी है जी, अपने को हुंदी है ग्रुप सीरीज या फिर अपन कहते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, तीसरी अपने को आ जाती है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर अपने को किस तरह हुंदा है, इसमें आप ग्रुप सीरीज भी कहते हैं कि जो आप ग्रुप बनाता अपने को डाटा बहुत ज्यादा है, अपने को मतलब कि गिनती बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल बच्चे हैगे ने क्लास के अंदर मतलब तुहाडे पेपर के अंदर 100 नंबर तक वाले बच्चे ने ते बच्चे दी स्टूडेंट ज्यादा 100 बच्चे ने, तो तुसी एक एक बच्चे दा नंबर नहीं लिख सकते ना कि 0 नंबर वाले 5 ने एवं लिखोगे बहुत जरा जी 100 नंबर तक हर एक नंबर बच्चे ने हासिल किया तो बहुत कम हो जाएगा, जरा अपने को कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अपने को एक ग्रुप सीरीज बन रही है कि 0 तो 10 वाले कितने ने, 10 तो 20 वाले कितने बच्चे ने, 20 तो 30 वाले कितने ने। इस तरह की जी सीरीज बन जाती है वो अपने को क्या होंगे जी, वो होंगे अपने को कंटिन्यूअस सीरीज या फिर ग्रुप सीरीज की 0 तो 10 वाले 4 बच्चे ने, इतने 5 ने, 3 ने, 2 ने। हुण इस दे अंदर ध्यान रखो जो आप डाटा इस तरह ग्रुप करते हैं ना तो जी अपर लिमिट होंगी है वो वाला बंदा नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता 0 तो 10 वाले बच्चे गिनने 10 नंबर वाले, तो उस अंदर जेडे बच्चे के 10 नंबर आए ना वो इस अंदर इनकलूड कदे नहीं होएगा, उसमें इस अंदर इनकलूड कदे भी नहीं करना आपा। ठीक है,
उस बंदे नूं आपां इस दे अंदर इनकलूड नहीं करांगे। तो आ होंदी जी अपर लिमिट, आ होंदी अपने को लोअर लिमिट। तो 10 वाला इत्थे नहीं होएगा, 10 वाला इस चीज के अंदर आएगा, इस चीज के अंदर जेड़ा जी अपने को इनकलूड होएगा। ते अपने को तीन तरह की सीरीज ने। हुण जेड़ी ग्रुप सीरीज है जी, इस दे अंदर जेड़ी जी अपने को की होंदी वन एंड सीरीज भी इनू कहंदे कि वन ओपन एंड सीरीज, सॉरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੋ 10 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਬਿਲੋ 20, ਦੈਨ 20 to 30, 30 to 40, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲੋ 10 20 ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30 ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਅਬਵ 30। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ उन्होंने कोई अपर लिमिट नहीं दी। तो ये दोनों सीरीज की होगी जी अपने को, सॉरी ये दोनों सीरीज अपने को की हो गया जी, ये अपने को ओपन एंड सीरीज हो गई। केडी सीरीज हो गई जी, ओपन एंड सीरीज हो गया। ये दोनों ही अपने को केडी सीरीज आ गया, ओपन एंड सीरीज। हाँ जी, हुण आपां गल करदे हां मीन कढना किवें। आपां अर्थमैटिक मीन च कढना होवे तां आपां किस तरीके नाल कढांगे, केडी सीरीज दा किस तरीके नाल जिहड़ा मीन आ कढिया जांदा है। तां सब तो पहला आपां इंडिविजुअल सीरीज बारे गल कर लैंदे हां। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपन इंडिविजुअली डाटा देता होंगे। फॉर एग्जांपल तुहानू नंबर देते 2 5 7 9 8 6 3 4, कहते इसका मीन पता करो, इसका मीन पता करो। तो मीन की होंदा है जी, अर्थमैटिक मीन, इहनू आपां एक्स बार नाल डिनोट करते हैं। आ की होंदा जी सिग्मा एक्स बाय एन, कहने का भाव कि सारे नंबरों का जोड़ डिवाइड बाय गिनती। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज ने। तो हुण इसदा मीन कटांगे तो कितना बनेगा, सम करो कितना बनेगा, 7 ते 7 14 ते 9 23 ते 8 31 ते 6 37 ते 40 ते 44 बन गया। तो इन्हां दे नंबर किन्ने ने अपने कोल, ए जी 8 ने। तो 44/8 इसदा मीन आ गया, दैट इज 45.5 कितना आ गया जी, 5.5 जड़ा है जी अपने को सीरीज है, इसका मीन आ गया। कितना मीन आ गया जी, 5.5 आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो आएगा जी से अपने को इंडिविजुअल सीरीज का मीन। एक बार आप सिंपल गल्लां लेके चलते हैं। दूसरा अपने को आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। हम डिस्क्रीट सीरीज के मीन की गल करिए तो डिस्क्रीट सीरीज अंदर पहले मैं दस्सिया सी सीरीज किस तरह दी जी, अपने को डबल दिता होंदा है, एक अपन एक्स दिता होंदा है, एक अपन फ्रीक्वेंसी दी होंगी है। एक्स में ले लिया 4 5 6 7 8, फ्रीक्वेंसी ले ली जी 3 2 3 4 5। ठीक है, हाँ जी। तो ये अपने को इस दे अंदर जब मीन पता करना है तो इस अंदर अपने को मीन का फार्मूला होता है जी सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एक्स, इस दिन अपने को फार्मूला लगता है। एफ एक्स अपने को क्या आ जाएगा जी, इतने 12 10 18 28 40। सिग्मा एफ एक्स मतलब कि इन्होंने सारे का जोड़ कर दो, इन्होंने सारे जोड़ लो, कितना बनेगा जी 16 ते 2 18 ते सॉरी 6 7 8 9 ते 1 10, 108 बन गया जी। टोटल सिग्मा एफ कितना बनेगा जी, देखो 5 4 9 3 12 ते 14 ते 3 17। तो इसका क्या आ गया जी, मीन आ गया। इसमें डिवाइड करके देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना बन रहा है। तो अपने को इसका क्या आ गया जी, मीन आ गया। मेरे हिसाब से आ जाएगा 617 6 108 होंगे ना, नहीं होंगे, सॉरी 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 18 6 का होता है। इन्हों सोल्व करोगे तो अपने को इसका आंसर आ जाएगा 108 सारा डेसिमल के अंदर कुछ आंसर आ जाएगा, वो अपने को क्या आ गया जी, मीन आ गया। तीजी सीरीज होंदी है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस या ग्रुप सीरीज के अंदर गल करिए तो उस अंदर मीन कढण लई की होंदा, अपने को इत्थे जी सीक्वेंस दिता है 0 तो 10 10 तो 20 20 तो 30 30 तो 40। ठीक है, इत्थे फ्रीक्वेंसी दी हुई है जी 3 2 5 4। पहला आप की करांगे जी, अपने को पहला आप इत्थे कढांगे जी एम। एम की होंदा इन्हां दी मिड वैल्यू किवें करदे हैं जी, इन्हां दोनों दा प्लस करके डिवाइड बाय 2 तो कितनी आ गई जी 5, इत्थे कितनी आ गई जी 15, इत्थे आ गई 25, इत्थे आ गई जी 35। फिर की करते हैं एफ एम पता करते हैं 15 30 125 ते 140। ठीक है, आ अपने को आ गया जी
FM आ गया तो इस दे अंदर मीन का फार्मूला की हुंदा जी, वो हुंदा सिग्मा FM बाई सिग्मा F। तुसीं कहोगे मैं माता बड़ा ही ईजी पता है सानू इन्हां चीज़ां बारे ना दसो, तो पर आपां जी आपां कोई टॉपिक छड्डना नहीं, मैं पहले ही किया सी। आ गया जी 10 ते 2 ते 5 ते 7 ते 11, आ गया जी 310 बटा 14। तो इस तरह आप तीनों सीरीज के अंदर जो आप नॉर्मली मीन करना है तो वो आप इस तरह जी कर सकते हाँ। ठीक है जी, तो आ सी जी अपने को अर्थमैटिक मीन बारे कि अर्थमैटिक मीन आप इस तरह कर सकते हैं। हुण अर्थमैटिक मीन के अंदर अपने को किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज दे मेरी मेरी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अपने को क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे तरह के अपने को क्वेश्चन बन सकते हैं अर्थमैटिक मीन के अंदर। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्होंने आप किस तरह के शॉर्टकट लगाने हैं, ये सारे चीज आप डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हुण आप गल करते हैं अर्थमैटिक मीन के अंदर ही। अर्थमैटिक मीन के अंदर पहला क्वेश्चन तो सीधे तुहानू मीन पूछ लिया कि इन्ने आंकड़े दिते इन्हां दा मीन पता कर दो। ठीक है जी, इन्ने आंकड़े दिते इन्हां दा मीन पता करो, इन्हां दा औसत पता कर दो, दैट इज सिंपल। उस दे बाद आपने की कई बार आ जाता है कि इनकरेक्ट मीन दिता हुंदा है ते करेक्ट मीन पता करना हुंदा है। ये क्वेश्चन आ बनता है कि इनकरेक्ट मीन दिता होया है ते करेक्ट मीन पता करना है, तो वो आप किवें करते हैं। जदों भी इनकरेक्ट मीन दिता हुंदा उस दिन पता की हुंदा है, तुहानू कहंदे ने कि एक 10 स्टूडेंट्स का डाटा सी, 10 स्टूडेंट के नंबर जोड़े सी, 10 स्टूडेंट के नंबरां दी एवरेज तुहाडे कोल जी हैगी सी 13। ठीक है, 13 तुहाडी एवरेज सी या फिर अर्थमैटिक मीन सी। कहंदे एक स्टूडेंट के नंबर जिहड़े 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट कितना है, कहंदे एक या 2 स्टूडेंट नंबर जिहड़े जी 30 की जगह 23 लिखे गए, तो करेक्ट मीन पता करो। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है करेक्ट मीन के अंदर। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो उसमें किवें सोल्व करते हैं, देखो तुसी की करना है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ करेक्ट मीन ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ लेना इनकरेक्ट मीन, ओ सॉरी इनकरेक्ट सम कट लेना है। इनकरेक्ट सम करके ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ माइनस कर देनी है इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर देनी है, प्लस कर देनी है करेक्ट वैल्यू, तो डिवाइड कर देना नंबर्स नाल सीधे ही, वो तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर देनी है, करेक्ट वैल्यू ऐड कर देनी है, तो इनकरेक्ट सम दे अंदर डिवाइड बाय n कर देना, तो अपने को क्या आ जाएगा जी करेक्ट मीन तुहाडे सामने आ जाऊगा। करेक्ट मीन अपने को जिहड़ा जी सामने आ जाऊगा कि करेक्ट मीन कितना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथ is 62। यहाँ पे 62 है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन we find one student's marks mistakenly taken is 54 instead 45। तो करेक्ट मीन पता करो। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नंबर देते तो कहता कि इन्ने एवरेज है तो इसका गलती ना बच्चे के इन्ने नंबर सी तो आना सी, तो तुम इसका करेक्ट मीन पता करना है। ठीक है, तो आप की करेंगे जी, पहले आप करेक्ट रोंग सम देखेंगे। रोंग सम की होगा जी इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट, तो रोंग सम कितना जी 620 माइनस की करेंगे जी इनकरेक्ट किन्ने सी जी 54 सी, प्लस की करेंगे जी करेक्ट करेंगे, प्लस करेक्ट किन्ने आ जी 45, डिवाइड बाय की कर देंगे जी n 10 जिन्नी n सी, तो आ की आ गई जी, आ गया जी 620 माइनस अपने को 54 तो 45 आ गए जी 9, तो 620 तो 9 घटा दो 611 बटा 10, तो करेक्ट एवरेज किन्नी आ गई जी 8.1। एक आ तरीका था अपने को जर्नल मैथड है, सीधा आप मेन मैथड लगाते हैं। जो तुम लगाना हो अंदर शॉर्टकट, तो तुम क्या करना जी इनकरेक्ट मीन के अंदर की माइनस करना है, इन्हों का डिफरेंस देखना है गलत ते सही नंबरों का। गलत ते सही नंबरों का डिफरेंस कितना है 9 डिवाइड बाय 10, बस डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना आ गया जी 62 माइनस 0.9 कितना 61.1 आ गया। ठीक है,
ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 17 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ 63 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ 35 ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ जी, करेक्ट वैल्यू कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ 45 है। ओहो सॉरी, हाँ जी करेक्ट कहते हैं 45 है। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਗੁਣਾ 63 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 45 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਇਨਕਰੈਕਟ डिफरेंस, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, करैक्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ माइनस करना है। करैक्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ओ सॉरी माइनस कर रहे हैं, हाँ जो माइनस, हाँ माइनस कर रहे हैं तो इनकरैक्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ करैक्ट ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ है। इनकरैक्ट ਤੇ करैक्ट ਦਾ डिफरेंस चेक करना है, हमेशा इनकरैक्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस -10 ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 17, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 63 प्लस 10/17 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ डिफरेंस ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ 34 ਦਾ डिफरेंस ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 9 69 कर देने ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 69 ਦਾ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 34 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 63 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 63 ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ डिफरेंस ਆਫ ਇਨਕਰੈਕਟ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ डिफरेंस ਆਇਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 63 + 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 65। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 65 ਆ ਗਈ, ਕਰੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ 65। सॉरी, हाँ जी। इस तो बाद अपने को कंबाइंड मीन होता है। कंबाइंड मीन किवें पता करते हैं, कंबाइंड मीन के अंदर की होंगे जी, अपन 2 मीन दिते होंगे, ठीक है। x1 का दिता होंगे, x2 का दिता होंगे, दोनों की गिनती दिती होंगी है। सॉरी, N1 ਤੇ N2 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखो जी, कंबाइंड मीन पता करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप की करांगे जी N1 × X1 कर देंगे, पहले दी गिनती ਨੂੰ पहले दी मेन ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूजे दी गिनती ਨੂੰ दूजे ਦੇ मेन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके दोनों ਨੂੰ जोड़ के डिवाइड बाय दोनों दी गिनती कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहदा A ग्रुप है, एक B ग्रुप है। A ग्रुप ਦਾ मेन जी एवरेज है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ 10। B ग्रुप ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 130 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 120 ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 250/18 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੀਨ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੌਰੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ
ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम।